شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں کو بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی، اور سلام ان دوستوں ساتھیوں کو جو فرینڈشپ ایونجلزم میں مصروف ہیں اور عملی طور پر وہ مسیح کو پیش کرتے ہیں، نہ کہ صرف باتوں سے یا نئی نئی کہانیاں سنانے سے، بلکہ وہ زندہ مسیح کو دکھاتے ہیں۔ کسی کی ضرورت ہو کپڑے کی، دوائی کی، اسکول فیس کی اور رہنمائی کی، کاؤنسلنگ کی، تو وہ ان کا ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ آئے اور آ کے تو شاگردوں کو کہنے لگے کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم یسوع کو دیکھیں، جو گاؤں گاؤں، شہر شہر اور دور افتادہ علاقے میں جا کے کاؤنسلنگ بھی کرتا تھا، بیماروں کو شفا بھی دیتا رہا، مردے بھی زندہ کرتا رہا، بھوکوں کو کھانا بھی کھلاتا رہا، اور جو تعلیم سے خالی تھے انہیں تعلیم دیتا رہا۔ اور مسیح کو کہا گیا کہ یہ واقعی استاد ہے۔ جو عبرانی لوگ تھے، عبرانی ربی، وہ بڑے اپنے آپ میں گھمنڈ، غرور میں اور فخر میں رہتے تھے، لیکن وہ یسوع کو استاد مانتے تھے۔ تو یہ سارے کام جو ہیں، ضرورت مند کی ضرورت پورا کرنا، یہ زندہ مسیح کی نشانی ہے۔ تو ہمارے ایونجلیکل فرینڈز آف کرائسٹ ٹیم کے ساتھی، بھائی بہنیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں عملی طور پر مسیح کو پیش کرتے ہیں، تو میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ آئیے آج کے ٹاپک پر دھیان دیں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے سمخت تورا۔ اس لیے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ عید ہے، یوم توعہ۔ ایک ہے تورا، ایک ہے توعہ، یعنی کہ شریعت کا دن، اور ریجوائسنگ تورا کے تورا کے ملنے کی خوشی منانا۔ 14 اکتوبر کو یہ کلام نازل ہوا، اور اس کلام کو 10 کمانڈمنٹس کہا گیا، جو موسیٰ کے تھرو دیے گئے۔ اور پھر کچھ تحقیق کرنے سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنے کا دن بھی وہی موقع تھا، وہی دن تھے، اکتوبر 14، کیونکہ جو بھیڑوں کے بچے ہیں وہ اکتوبر کے موسم میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بھیڑیں بچے دیتی ہیں، اور پھر 6 مہینے آپ گن لیں تو آگے آ گیا پھر ستمبر اور اکتوبر، یہ 2 مہینے ہیں جن میں وہ بچے پیدا کرتی ہیں۔ اب آگے ہے نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ اور اپریل کے پھر 2 مہینے ہیں، جو یہ بن جاتے ہیں 6 مہینے، جس میں پھر وہ بچے پیدا کرتی ہیں اپریل میں، مارچ اپریل میں، اور ادھر ہے ستمبر اکتوبر میں۔ تو 14 اکتوبر
पर जो कलाम जिसे 10 कमांडमेंट्स कहा जाता है, जिसकी खुशी मनाई गई और जिसे ईद तोरा कहा गया है, सिमखा तोरा कहा गया है और खुशी मनाई गई। तो ये खुशी का, ये बनी इसराइल ने खुशी मनाई बियाबान में। अब इस खुशी को आप देखो कि जब मसीह पैदा हुआ, आसमान से फरिश्तों ने खुशी मनाई और कहा कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। फिर कहा गया कि और जो गडरिये हैं, जो भेड़ें चराने वाले हैं, उनको कहा गया तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की खबर है कि एक मनज्जी इस दुनिया में पैदा हुआ और तुम्हारे लिए ये निशान है कि वो बच्चा कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा है। फरिश्ते गा रहे हैं, गाते हुए आसमान पर जाते हैं, गाते हुए आते हैं, गवाही दे रहे हैं पूरी दुनिया में। सिमखा तोरा, जिंदा कलाम आ गया। जैसे यूहन्ना कहता है, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि खुदा के बेटे का जलाल है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने उसको जाहिर किया। अब आप देख ले, दोनों तरफ खुशी मनाई जा रही है। जब कलाम मूसा पर नाज़िल हो गया और लोगों ने खुशी मनाई और ईद मुकर्रर की गई, ईद पेंतिकोस्त भी कहा गया और इसको सिमखा तोरा भी कहा गया और इसे जो है ये ख़ास इसका एक ख़ास एक्शन है जो यहूदी इस पर करते हैं। 14 अक्टूबर को वो नज़में गाते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। वो एक तरह से बड़ा उनका रिजॉइसिंग दिन होता है कि तोरा मिल गई, इंजॉयमेंट का दिन होता है। और आप जानते हैं कि ये खुशी का दुश्मन कौन है? इन्हीं दिनों में 14 अक्टूबर को हमास ने और हज़बुल्लाह ने और बीच में कुछ और भी तंजीमों ने इसराइल पर हमला कर दिया। गो दिखाई देता है सिर्फ हमास, लेकिन इनके पीछे ईरान भी है और इसराइल के पीछे जैसे अमेरिका है, इनके पीछे रशिया भी है, तुर्की भी है, चाइना भी है। ये सियासी बातें हैं, अंदर की बातें हैं। हमारा काम तो है खुदा के कलाम की अज़मत को बयान करना कि मसीह खुदा का कानून है, मसीह खुदा का तोरा है, मसीह खुदा के अहकाम हैं। इसलिए जो मुक़द्दसीन हैं वो खुशी मनाते हैं कि उन्हें मसीह मिल गया, हमें ख्रिस्तुस मिल गया, हमें मसीह मिल गया। वो खुशी मना करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कहते हैं कि हमें ख्रिस्तुस मिल गया, हमें मसीह मिल गया। जिनको मसीह की अहमियत का पता है वो बड़ी खुशी मनाते हैं। मेरा एक गीत है, वो इस्लामाबाद के एक सिंगर हैं महबूब गिल, उन्होंने गाया है कि वो बड़े नसीबां वाला जिन्हों समझ यस्सू दी आई। वो हकीकत में नसीब वाला है, वो हकीकत में बख्तों वाला है, वो हकीकत में खुशी वाला शख्स है जिसको यस्सू की समझ आ गई है। और समझ किस किस को आई है? जब उन गडरिये जो बियाबान में बैठे थे उनको समझ आई तो वो भागे यस्सू को देखने के लिए। जब मरियम अलिशबा के घर गई तो उस अलिशबा ने कहा कि
मेरे घर में मेरे घर में मेरे खुदावंद की माँ आई है और बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछला है। ये सिमखा तोरा है, उछला है। उछलते हैं यहूदी, डांस करते हैं, तराने नज़में गाते हैं। 14 अक्टूबर को बड़ा मेला होता है। इतना वो मेला, इतना वो ईद, इतनी वो खुशी, इतना रिजॉइसिंग में चल गए कि उनको पता ही नहीं चला कि उन पर बेईमानों ने और दूसरे लोगों ने हमला कर दिया। इतने वो मगन थे उसमें। तो ये इस्तिस्ना में भी लिखा है 16वें बाब में कि तो जो तौरेत है उस पर खुशी करो, इंजॉय करो, अपनी खुशी को बढ़ाओ। और ये खुशी को बढ़ाने के लिए जब कलाम नाज़िल हुआ तो बियाबान में बहरे कुलज़म के पहले ही पहाड़ पर, जैसे मैंने पहले बताया एक ऑडियो में कि 7 दिन बनी इसराइल को बियाबान में लगे चलते चलते, मिस्र से निकलकर बहरे कुलज़म तक आते हुए 7 दिन लग गए। और फिर 3 दिन उनको लगे कुलज़म में से निकलते हुए। वो मैं गया हूँ उस जगह पर, एलात के ऊपर वाले हिस्से पे, जो रास्ता जो कुलज़म का है, जो जिसे बहरे अकबा भी कहा गया है और खलीज भी कहा गया है, खलीज अरब। तो मैं वहाँ पर गया हूँ। वहाँ पर उन्होंने पिलर भी लगाए हैं ताकि पता हो कि इस जगह से वो गुज़रे हैं। तो वो बड़ा बड़ा समुंदर है। समुंदर कोई छोटी सी चीज़ नहीं होती, कोई झील को समुंदर नहीं कह देते। बाज़ दफ़ा लोगों ने कहा भी है बहर, लेकिन जो हकीकत में समुंदर है वो समुंदर है। वो गहरा भी होता है, चौड़ा भी होता है, और उसकी छाल में ताकत भी है, उसकी लहरों में ताकत भी है। और जब ये एक बड़ी भीड़ जो लाखों में थी, जब वो गुजर रहे हैं उसमें, तो उनके साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उनके पास उनकी गाड़ियां भी हैं, उनके मालो मवेशी भी हैं, उनके पास उनके परिंदे भी हैं, कबूतर भी हैं, मुर्गियां भी हैं। तो वो आराम आराम से जब गुजर रहे तो 3 दिन लग गए उनको सीना के एलात के एक नुक्कड़ से, एक कोने से, एक किनारे से अरब के दूसरे किनारे तक जाते हुए। गोया कि कौम बनी इसराइल 3 दिन मौत की हालत में थे। पीछे उनके लगा हुआ है फिराउन, और खुद वो समुंदर में है, मौत में है। और खुदा ने उनको तीसरे दिन जिंदा कर दिया। वो निकल गया बाहर और वो हुरब के मैदान में पहुंच गया। वहाँ पर भी मैंने देखा है जहाँ पर वो पहुँचे थे। सारे लोग तो सीना के पहाड़ों को देखते रहते हैं, जबकि सीना का सिलसिला बहुत दूर तक जाता है। ये जोग्राफिया की जो स्टडी है या जो जोग्राफिया के तालिब इल्म है वो बखूबी जानते हैं। तो जब ये पार चले गए, तो जैसे ही पार गए हैं तो खुदा ने हारून और जो मूसा है इनको मुकर्रर किया था कि कौम की रहनुमाई करें। और मूसा ने हारून को कहा कि तू इनके पास रह, मुझे बुलावा आया है, मैं ज़रा हाज़री दे के आऊँ। मुझे खुदावंद ने बुलाया है कि मैं हुरब पर आऊँ और मैं अब जा रहा हूँ। और वो 40 दिन वहाँ पर रहा। और जब 10 पिछले गिन लो और 40 वो, तो 50 हो गए। 50वें दिन को, जिसमें जब जो 7 सब्बत आ गए और 7 जब सब्बत हो जाते हैं तो वो जो 49वां दिन है, उस दिन रात को बड़ा नरसिंगा फूंका जाता था, क्योंकि अगले दिन 50वां था। तो 50वें दिन को जुबली का दिन भी कहा जाता है, सिमखा तोरा भी कहा जाता है, कलाम का नज़ूल भी कहा जाता है, रिजॉइसिंग दिन भी कहा जाता है,
लकी दिन भी कहा जाता है, खुशी की खबर भी कहा जाता है। और ये भी यही खबर कहा गया कि फरिश्तों ने कहा कि जिनसे खुदा राजी है उनके साथ सुलह। खुदा राजी हुआ तो सुलह हो गई, तो उसने उनको असूल कानून दिए। जब राजी नामा होता है, जब सुलह होती है, तो फिर असूल बनाए जाते हैं कि हमें किस तरह से रहना है। जब किसी की शादी होती है तो औरत को कहा जाता है, लड़की को कहा जाता है ये तेरा शौहर है, और लड़के को कहा जाता है ये तेरी बीवी है, इसलिए अब तुम इकट्ठे हो, तुमने एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, एक दूसरे का अदब करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, दुनिया से अलग होकर जब तक मौत जुदा ना करे। ये कमिटमेंट को कानून कहा जाता है, और कानून को तोरा कहा जाता है। यही खुदा का कलाम है, और ये खुदा का कलाम नाज़िल हुआ आग की सूरत में, तख्तियों पर ठहर गया और तख्तियों के ऊपर लिखा गया। आग ही से पैंतीकोस्त के दिन तख्तियों पर लिखा गया, आग ही से पैंतीकोस्त के दिन शिगिर्दों के सरों पर रूहुल कुद्दस के आग के शोले ठहर गए। यानी कि शिगिर्दों में भी कलाम लिखा गया, भर दिया गया, और उधर तख्तियों पर लिखा गया। जो तख्तियाँ है, जैसे कहा जाता है ये तो पत्थर पे लकीर है जो मिट नहीं सकता। जब मुकद्दसों पर, जब शिगिर्दों पर वो नाज़िल हुआ, शिगिर्दों पर से मिटा नहीं कलाम। शिगिर्द मर गए, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी, लेकिन कलाम नहीं मिटा। यही खुशी है, जब वो जेल में थे तो उनके अंदर वो कलाम था, सिमखा तोरा था, वो गा रहे थे खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। वो लकड़ी में ठोके गए हैं और गा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर आपको ये तौरेत, ये तोरा मिल चुका है, तो फिर आपके लिए सवाए खुशी के और कोई एवार्ड नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई और मैं चीज़ों का क्या नाम लूँ, आप सब जानते हैं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि खुदा का कलाम आपके पास है, और वो कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी होंगे। खुदा का कलाम कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, और खुदा का कलाम कहाँ पे है? खुदा में है। जैसे यूहन्ना की इंजील 17वें बाब में लिखा है कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में है और तुम हम में हो। यानी कि जब कलाम हम में है और हम कलाम में हैं, तो कलाम खुदा में है और हम खुदा में हो जाते हैं। तभी तो वो कहता है जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। वो कहता है तेरी शहरे पनाह पर मेरी निगाह लगी रहती है। अब देखिए क्या बनता है, क्योंकि सारी कौम बनी इसराइल सिमखा तोरा मना रही थी और उनको छेड़ा गया है, उन पर मज़ाइल दागे गए हैं, उन पर हमला किया गया है। अब जिसका वो दिन मना रहे थे, अब वो क्या करता है ये लग पते जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर उस कलाम को रख लें और रिजॉइसिंग दिन, खुशी का दिन, इंजॉयमेंट का दिन मनाएं, क्योंकि ये आपकी लक है। ये जो सिमखा है, ये खुशी है, ये लक है, ये ताजगी है, दलेरी है, और ये नारे हैं, ये नज़में हैं, ये गज़लें हैं, ये राग है। बड़े नसीबों वाला जिन्हों समझ यस्सु दिया है। बड़े नसीबों वाले हैं वो लोग जिनको तोरा की समझ आ गई, जिनको खुदा के कलाम की समझ आ गई। वो कलमतुल्लाह है, जिसको कलमतुल्लाह, कलमा खुदा की समझ आ गई, वो कभी अफसुर्दा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा ही सिमखा तोआ मनाता रहता है। वो ईद मनाता